हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम शीतल राजपूत हेयर विद यू। क्लास कल हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंजेक्शन। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में जाके आप चेक कीजिए, आपको उस कमेंट में उस वीडियो का लिंक है। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंजेक्शन की हेल्प से दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंजेक्शन देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। एंड from your NCERT you can do first 17 questions with the help of this method only. So let us do this. As I told you, whenever we prove something with the help of PMI, first of all we take it as PL. Now for P1 means we are taking only one term in the LHS, or in the RHS we will put n is equal to 1. So in the LHS if you see we get 1 into 3, that will be 3, and in the RHS if you put n is equal to 1 you will have 2 minus 1, 3 raised to the power 2 plus 3 upon 4, and that will be 9 plus 3 12, 12 upon 4, that is 3. So we have proved this expression for n is equal to 1. Now we will use PMI. What is PMI? I have already told you. PMI is if we prove something is true for a number and it will be automatically true for the next number. So next step is let PK is true. हमने माना है कि PK ट्रू है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ऑटोमेटिकली इससे अगला नंबर भी ट्रू होगा तो P1 प्रूफ कर चुके हैं आप लोग, P2 P3 P4 अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया कि हमने माना PK इज ट्रू, दैट मीन्स 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube, and it will go up to K into 3 की power K. That will be equal to 2K minus 1, 3 raised to the power K plus 1 plus 3 upon 4. Now students, ये that we have suppose, हमने सपोज किया है कि अगर ये नंबर ट्रू है तो हमने प्रूफ करना है उसका नेक्स्ट भी ट्रू होगा। ये हम ट्रू लेके चल रहे हैं। Now we have to show P K plus 1 इज ऑल्सो ट्रू। अभी हम शो करेंगे कि पी के प्लस 1 भी ट्रू है, तो उसके लिए हमने क्या प्रूफ करना होगा। यहाँ पर आपने कल भी बताया था हमने अपनी वीडियो में कि यहाँ पर के टर्म है, यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स के टर्म्स तो आएंगी आएंगी, उससे एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी। सो इट विल बी 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube, and it will goes up to k into 3 की पावर के टर्म्स तो आई, एक टर्म एक्स्ट्रा जो k प्लस 1th टर्म होगी। और वो कैसे पता चलेगी हमें, इसकी जगह n की जगह आप k प्लस 1 डाल दीजिए या k की जगह k प्लस 1, दे आर सेम। k प्लस 1, 3 raised to the power k plus 1. Here also in place of n you will put k plus 1, so you will be having 2 k plus 1 minus 1, 3 raised to the power k plus 1 plus 3 upon 4. This I need to prove. ये मुझे प्रूव करना है। थोड़ा RHS को सिंप्लीफाई करें अगर, so I will have 2k plus 1, 3 raised to the power k plus 2 plus 3 upon 4. That means अगर मैंने प्रूव कर दिया LHS is equal to this, my PK plus 1 is also true. So how we will prove it? Let us take LHS. LHS is this complete term. Now you see in equation 1 up to here we have this value, so in place of this we can put this value here. So let us put this 2k minus 1, 3 की power k plus 1 plus 3 upon 4. Till here we have put the value this from first, and this is our extra term, so put this term here, k plus 1, 3 raised to the power k plus 1. I also told in my first video, generally we are having only two steps. One is LCM, second thing is common. So let us take LCM. 2k minus 1,
3 raised to the power k plus 1 plus 3/4 and here 4 into k plus 1 3 raised to the power k plus 1. Now students, next step is common. कॉमन कहाँ से आएगा? यू हैव टू सी दिस थिंग केयरफुली. पूरी टर्म में से कॉमन नहीं है. एक यहाँ पर 3 की पावर k प्लस 1 आ रहा है, एक यहाँ पर 3 की पावर k प्लस 1 आ रहा है. दो जगह 3 की पावर k प्लस 1 है, तो इन दो से ही हम कॉमन लेंगे. आई एम डूइंग इट हियर. इन दोनों में से मैंने 3 की पावर, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 3 की पावर k प्लस 1 जैसे ही मैंने कॉमन लिया, वट वी लेफ्ट फ्रॉम हेयर 2k minus 1 from here, and from here 4k plus 4. And this 3 is left here क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन नहीं लिया है. Now student, question is done. It's quite easily done. Now see, this will become 6k plus 3. You can observe it k easily. 3 की power k plus 1. Inside the bracket you have 6k plus 3 plus 3/4. Very easy it is. Now 3 can be taken common. 6k plus 3 में से 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं. So what will we have? 3 raised to the power k plus 1 into 3 2k plus 1 plus 3/4. Clear? Now just because of lack of space, मैं यहीं पे आपका क्वेश्चन में रब करके करूंगी. देखिए 3 की पावर k प्लस 1, 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई में एवरीबडी नो पावर ऐड हो जाती है. तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट 3 की पावर k प्लस 2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर RHS. यही तो लाना था हमें. तो लास्ट में एक स्टेटमेंट, एंडिंग स्टेटमेंट PMI के हर क्वेश्चन में हमें लिखनी होती है. क्या स्टेटमेंट लिखनी होती है? जो हम बोल भी रहे हैं कि pk ट्रू है, हमने pk प्लस 1 भी प्रूफ कर दिया ट्रू. दैट मीन्स एक नंबर ट्रू तो उसके अगला भी हमने प्रूफ कर दिया. तो हम क्या लिखेंगे? हैंस pk प्लस 1 इज ट्रू. सो बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. हाउ? क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हैं एक नंबर ट्रू हुआ, उसके अगले वाला भी ट्रू है. तो P1 ट्रू है तो उसके अगले वाला भी ट्रू है. P2, P3 भी ट्रू है, P4 भी ट्रू है, एंड सो ऑन. सो this is one type of questions in PMI. So in NCERT book of class 11 up to question number 18, I think these type of question are there. So students, now you try all the questions. The other type of question, let us discuss it now. So one more type of questions are there which are also very easy. Suppose we have to prove 41 raised to the power n minus 14 raised to the power n is a multiple of 27. This type of question are also there in NCERT. We have to prove this is a multiple of 27 for all n belongs to natural number. So for this same method, same process we are going to follow. We take Pn. First of all, for P1 we will have 41 minus 14. Subtract कीजिए, you will get 27. And every one of us know 27 is a multiple of 27. 27 का मल्टीपल होता ही है फर्स्ट मल्टीपल. इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया है कि P1 इज ट्रू. इसमें LHS RHS नहीं है, इसमें हमें 27 का मल्टीपल शो करना है. मीन्स 27 इंटू समथिंग आना चाहिए. इट कैन कम्स 54, कुछ भी ऐसा टर्म आ जाएगी. इसके बाद लेट PK इज ट्रू. अगर हम सपोज कर रहे हैं कि PK ट्रू है, इट मीन्स 41 रेज टू द पावर K माइनस 14 रेज टू द पावर K मस्ट बी इज इक्वल टू 27 इंटू 1 भी हो सकता है, इंटू 2 भी हो सकता है, इंटू 3 भी हो सकता है, क्योंकि 27 का मल्टीपल है. इंटू m ले लेते हैं हम यहाँ पर. और ये मेंशन करना कंपलसरी है कि m कोई नेचुरल नंबर है. ये मल्टीपल है तो 27 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा कुछ होना चाहिए, डेसिमल में नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको 27 का मल्टीपल कह पाएंगे. सो यहाँ से अगर हम देखें
तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं इस टर्म की। नाउ क्लास, इसमें से हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है 41 की पावर k की वैल्यू निकालें, बट बिगर वाली टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। नाउ फॉर pk+1, नाउ टू शो मल्टीपल ऑफ 27, pk+1 के लिए तो हमने शो करना है ना, दैट मीन्स जब यहाँ पर हम n की जगह k+1 पुट करेंगे, क्लास इसमें कोई सीरीज नहीं है, हम कहते हैं इतनी टर्म तो आएंगे एक एक्स्ट्रा, इसमें एक ही टर्म है, तो हमने जब k+1 टर्म लिए तो n की जगह k+1 पुट किया है, तो इसकी वैल्यू 27 इंटू समथिंग आनी चाहिए। कैसे आएगी? विद द हेल्प ऑफ दिस। क्या करें, यहाँ पर ये 41 की पावर k है, जबकि यहाँ पर k+1 है, वैल्यू इसकी मुझे यहाँ डालनी है, तो बड़ा ही इजी स्टेप है, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, हम पढ़ते आते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। मैंने ब्रेक कर दिया इसको, क्यों ब्रेक किया है, इसी में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि इसकी वैल्यू डालनी थी यहाँ। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो हमारा क्वेश्चन इसकी वैल्यू पुट करते ही हो जाता है। देखिए जैसे हम 41 की पावर k की वैल्यू पुट करते हैं, विच इज 27m प्लस 14 की पावर k इंटू में आपका 41 है साथ में, और ये टर्म एज इट इज रहेगी जो हमारी चल रही थी साथ में। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 27 इंटू 41 प्लस 41 इंटू 14 की पावर k माइनस 14 की पावर k इंटू 14। क्लास मैंने बोला था आपको स्टेप वही है, एलसीएम एंड कॉमन। एलसीएम यहाँ हो नहीं सकता, फ्रैक्शन नहीं है, अब कॉमन यहाँ हो सकता है, और कॉमन आपको इजीली दिख जाएगा इन दो टर्म में से, एंड द कॉमन इज 14 रेज टू द पावर k, एंड यू विल गेट 41 माइनस 14। माइनस करेंगे इसे तो व्हाट विल बी है 27 इंटू 14 की पावर k। नाउ 27 कैन बी टेकन कॉमन, 41m प्लस 14 की पावर k, तो वी गेट 27 इंटू समथिंग, और ये जो इंटू समथिंग है ये डेसिमल में नहीं हो सकता, अगर आप ध्यान दें 14 की पावर k कभी डेसिमल में नहीं आएगा, m डेसिमल में नहीं है, कभी डेसिमल में नहीं आएगा, दैट मीन्स 27 इंटू some natural multiple. So we can say pk+1 is also true. Also true means it is a multiple of 27. So we can say by PMI, Pn is true for all n belongs to natural number. So very easy concept class it is. In my next video we will do inequalities in PMI. So class, please like, share and subscribe my channel, and the basics of PMI will be given in my previous video, and link are shared in the comments. So bye class.